حضرت جبریل آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج رات بستر پہ نہ سوئیے گا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ کانفرنس کہاں کی گئی؟ حتیم کے اس حصے میں، حتیم کی طرف جب آپ چہرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے پشت کی طرف یہ جو ایریا ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ دار الندوہ تھا جہاں پر مشرکین مکہ جمع ہوئے۔ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں سمے ہے تمہارے گیسو۔ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، اس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے، جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، یہ ہجرت مدینہ، ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں سمے ہے تمہارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی کی معراج، ہماری خوش نصیبی کہ ہم مکہ المکرمہ سے ہجرت کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ کافی سالوں سے ہماری پلاننگ تھی، نیت تھی، لیکن وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کام کے لیے ہم نے الحمدللہ وقت نکالا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہجرت کے سفر میں جہاں جہاں سے ہوا ہے ان تمام مقامات کو ہم آپ کو دکھا سکیں۔ یہاں سے ہجرت سفرت کی سٹارٹنگ ہوئی تھی۔ یہ گھر ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جی ہاں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا تو یہیں سے شروع ہوا ہے۔ پس منظر کا تھوڑا سا اگر جائزہ لیں گے تو بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے ذوق اور شوق میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے تبلیغ دین کا انداز جو مشرکین مکہ نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کانفرنس کی۔ کانفرنس کہاں کی گئی؟ حتیم کے اس حصے میں۔ حتیم کی طرف جب آپ چہرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے پشت کی طرف یہ جو ایریا ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ دار الندوہ تھا جہاں پر مشرکین مکہ جمع ہوئے۔ شیطان بھی عام حلیے میں اس کانفرنس میں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ من انتا، تم کون؟ اس نے کہا نا شیخ النجد۔ کہا جالس بیٹھ جاؤ، بھی بیٹھ گیا۔ اب ابو البختری پورے مجمع کے اندر حضور کے خلاف اس نے رائے پیش کی۔ ابو البختری نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باندھ دو معاذ اللہ، اور ایک کمرے میں لاک کر دو، سوراخ کے ذریعے سے کھانا پانی ان کو دیا جائے۔ شیطان چونکہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسی خطا نہیں کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو ان کے اصحاب اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور وہ جان کی بازی لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو مکے سے ہی نکال دیا جائے۔ سب نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس سے لوگوں کے کان بچے رہیں گے، جب نہیں سنیں گے تو ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوں گے۔
शैतान ने कहा तेरे मशवरे पर लानत हो, तुम क्या ये समझते हो कि इनको तुम मक्के से निकाल दोगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी? उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि नुकसान ये होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में तो ऐसी सोच है, ऐसी कशिश है कि ये कुरान सुना सुना के सारे अरब को मुसलमान कर देंगे, और एक टीम तैयार होगी और ये तुम पे चढ़ाई कर देंगे, तुम गुलाम बन के रह जाओगे। पूरे मजमे में सत्ता तारी दोबारा से हो गया। अब कौन क्या कहे क्या ना कहे, अबू जहल खड़ा हुआ। उसने कहा मुसाइबो, मेरे जहन में जो बात आई है ये तुम्हारे वहमो फिक्र से भी ना गुजरी होगी। सबने कहा हाँ बता तू क्या बोलना चाहता है? उसने कहा देखो, जब मक्के के लोग सो जाते हैं, रात का हिस्सा ढल जाता है, तो हम सारे सरदार मिल कर इनके घर में दाखिल हों और बिस्तर पे हमला करके इनको मार दिया जाए। माज़अल्लाह, ये वो कत्ल का मंसूबा था जो इस मकाम पर, ये दारुन नदवा जो दिखा रहे हम आपको, इस मकाम पर बैठ कर उन्होंने हुजूर के खिलाफ मंसूबेबाजियाँ की। वहाँ तो हुजूर के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, और कुरान करीम में सूरह अनफाल उठा के देखे, अल्लाह फरमाता है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जब कुफ़ार आपके बारे में मकर कर रहे थे कि आपको कैद करें या शहर बदर करें या कत्ल करें, ये मकर कर रहे थे और अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था। नाज़रीन, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर, इस सफ़र के बारे में खुफिया तदबीर क्या थी? वो ये कि वहाँ कत्ल का मंसूबा उन्होंने बनाया, और यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा। हज़रत जिब्रील आए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज रात बिस्तर पे ना सोइएगा, हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले जाए। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आका दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नाज़रीन, यहाँ से हम सफ़र हिजरत का आगाज़ भी करेंगे, और चूँकि वाक़या इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जहाँ जहाँ से गुज़र हुआ है, जिन जिन वादियों से, जिन जिन सहराओं से हुजूर ने गुज़र फरमाया है, और कहाँ कहाँ हुजूर का क़याम रहा है, और कौन कौन लोग सफ़र हिजरत में हुजूर से आके मिले, और कितने लोग हुजूर के दावने करम से वाबस्ता हुए, हम सबके वाक़यात इंशाअल्लाह बयान करेंगे। उन मकामात की ज़ियारत भी हम कराते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का वाक़या मैं आपको बयान करूँ ताकि आप इस बात को समझ सके। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी घर के अंदर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अली आज रात मेरी ग्रीन चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पे सो जाना, फ़लाँ फ़लाँ लोगों की अमानतें रखी हैं, इनको लौटा देना, फिर तुम मदीने आ जाना। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने हाथ में खाक उठाया, कुछ पढ़ा, पढ़ के फूंक मारा और काफिरों के सर पे हुजूर ने डाला। सूरह यासीन की आयत पढ़ते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान आली शान की जानिब। जी हाँ, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मकान है, काबा मुशर्रफा से तकरीबन 309 मीटर के फासले पर ये पड़ता है। जब आप मरवा से बाहर निकलेंगे तो सीधे हाथ पे आपको होना है, तो ये चीज़ आपको घेरा हुआ यहाँ पे नज़र आ जाएगा, और जब सफ़ा से आप बाहर आएंगे तो सफ़ा से बाहर होते ही आपको दिल की जानी मुड़ना है, तो ये मकाम आपको नज़र आएगा। यहाँ की पहचान ये है कि यहाँ के जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये देखें जो पत्थर है, इन्होंने कतरी की शक्ल में उसको काटा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस मकाम को रात हो दिन हो, हज हो, उम्रा हो, रमज़ान हो, इस मकाम को घेर के ही इस मकाम पे इसको रखा जाता है। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये मकान आली शान था, जहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत फरमाई। इस सफ़र में मकाम हजूरा का भी जिक्र है। मकाम हजूरा क्या है, हम आपको उस मकाम पे जाके इंशाअल्लाह बताएंगे, दिखाएंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान कहाँ था, उसको भी शामिल करेंगे, और किस रास्ते से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सौर पे तशरीफ़ ले गए, हम इसको भी शामिल करेंगे। जबल सौर से उतरने के बाद हुजूर का पहला क़याम कहाँ था, इंशाअल्लाह इसको भी शामिल करेंगे। इस सिलसिले की कई एपिसोड तैयार करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हम आप मुकम्मल तौर पे तमाम इस एपिसोड को मुलाहजा कीजिएगा। हमारी कोशिश है कि बीबी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान आली शान से लेकर मदीने तैयबा तक हुजूर का जिन जिन मकाम पर क़याम रहा है, जिन जिन पहाड़ों के दरमियान से हुजूर का गुज़र हुआ है, और इस सफ़र के अंदर वो कौन कौन से लोग हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिलते हैं,
दावन करम से वाबस्ता होते हैं, शर्फ सहाबियत से मामूर होते हैं। इंशाअल्लाह उन सहाबा का भी जिक्र होगा और सफ़र हिजरत में जितने वाक़यात दरपेश हुए हैं उन तमाम वाक़यात को इंशाअल्लाह हम इन वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। दिल नशीन सफ़र, एक रूहानी सफ़र मक्कातुल मुकर्रमा से हमारा जारी है। हमारे साथ बने रहिएगा। कई हिस्सों में हमारी वीडियोस आएंगी, तमाम वीडियोस को आप देखते भी रहिए। ज़ुबैर मक्की 1 को सपोर्ट कीजिए। आइए चलिए यहाँ से हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान की तरफ बढ़ते हैं। उनका घर कहाँ था, किस मकाम पे था, आगे का वाक़या क्या है, हम शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हिजरते मदीना ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, उनकी खुशबू से महक जाती। नाज़रीन, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से हुजूर ने जो सफ़र फरमाया, उसके बाद जिस मकाम पे हुजूर का क़याम रहा, ये जो बाब अब्दुल अजीज़ का मीनार देख रहे हैं, इस मीनार से तकरीबन 15 कदम गिन के इसके पीछे एक मीनार था जो हम आपको मीनार दिखा रहे हैं। ये है मीनार अल हजूरा के नाम से। यहाँ पे सूक अल हजूरा भी था जहाँ पर बाज़ार लगता था, और इसी बाज़ार से करीब में ही चंद कदम के बाद सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान आलिशान था। इसी मकाम पे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि ये मीनार उसके अगले हिस्से पे बनाया गया है, इसके पिछले हिस्से पे वो मीनार था। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर खड़े हुए और हुजूर ने काबाए मुशर्रफ किया, और जो कुछ फरमाया उसका मफहूम ये है कि ए काबा, ए शहर मक्का, तू तमाम जहान से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझको यहाँ से ना निकालती। और बिल यकीन ऐसा ही है कि अल्लाह पाक ने भी फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह पाक को भी शहर मक्का बहुत ज़्यादा पसंद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा शहर मक्का पसंद था। मकाम हजूरा के हवाले से अगर पैमाइश की जाए तो जो मौर्रिखीन ने पैमाइश की है, काबा मुशर्रफा से 73 मीटर के फासले पर मकाम हजूरा था, जहाँ पर यह वाक़या दरपेश आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुशर्रफा को मुखातिब किया और फरमाया कि ए काबा, ए मक्का, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरी कौम मुझको यहाँ से ना निकालती। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक को भी शहर मक्का बहुत ज़्यादा पसंद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहर मक्का बहुत ज़्यादा पसंद है। मक्का अल मुकर्रमा की याद पूरे सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती रही, और किन किन मकामात पे ये वाक़या रूनुमा हुए हैं हम इसको भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। हम भी था सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकाम हजूरा पर पहले आए और यहाँ ये इरशादात फरमाए, या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे सरकार तशरीफ़ ले गए और बाद में यहाँ तशरीफ़ लाए और ये इरशाद फरमाया। इसमें मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर मुहद्दिसीन इकराम ने इस बात को ही नकल फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मकाम हजूरा पे तशरीफ़ ले आए, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे हुजूर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वो रफ़ीक़ सफ़र थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के हवाले से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला फरमानी थी। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के पीछे खिड़की निकलती थी, पिछला दरवाज़ा, वहाँ से हुजूर का खुरूज हुआ और हुजूर हिजरते मदीना ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, उनकी खुशबू से महक जाती है कलियां वल्ला, कैसे फूलों में समाए है तुम्हारे गैसो। हिजरते मदीना ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना, ये हिजरते मदीना।